ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وقال الله تبارك وتعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض سما کے لیے لائق سزاوار ہیں. بیش بہا درود و سلام نازل ہو اس ہستی مقدس مطہرہ پر جن کے نام نامی اسم غریب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ. معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے باپوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، آج جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ ہے جہنم کی ہولناکیاں. اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دوں. بہت دلچسپ جواب ہے کہ جب سے میں اڑیسہ میں آتا ہوں کئی ایک جگہ پر مجھے بہت عزت ملی. ان میں سے ایک گھوزدہ ہے. گھوزدہ میں جب بھی میں آتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی گھر پہ ہوں، اپنے گاؤں میں ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میں رمضان میں وقت دیا تھا لیکن میں نہیں پہنچ پایا، بخار ہو گیا تھا مجھے. کئی لوگ یہ پوچھ رہے تھے کیا بھول گئے؟ بھولنے والی چیز نہیں. ایک حدیث سے سمجھاتا ہوں کہ میرے نزدیک گھوزدہ کی حیثیت کیا ہے، میں کیا سمجھتا ہوں. ایک حدیث سے سمجھاتا ہوں. جنگ کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مال بانٹ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے مہاجروں کو مال زیادہ دے دیا. بکریاں، اونٹ اور جتنے بھی سامان جنگ کر کے ملا تھا زیادہ تر مہاجر لوگ کو دے دیے. تو انصار میں سے کسی نے یہ کہہ دیا یہ عجیب فیصلہ ہے بھائی، سر کٹاؤ تو انصار، خون بہاؤ تو انصار، مہاجر کی مدد کرو تو انصار، اور جب مال بانٹنے کا ٹائم آیا تو سب دے دیا. تو
تو یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی نے مہاجر کو اور انصار کو بٹھایا اور کہا اے مہاجروں، کیا کسی انصار میں سے یہ کسی نے کہا ہے؟ تو سارے خاموش تھے۔ کچھ لوگ بول پڑے کہ اللہ کے نبی، جو لوگ سمجھدار ہیں وہ لوگ تو بولے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بول دیا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے انصارو، تم کہو مجھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو مکہ والے ٹھکرائے تو ہم مدینہ والے آپ کو پناہ دیے۔ اب کہو مجھے کہ جب دنیا والے آپ کو جب بے ایمان کہا کرتے تھے، جادوگر کہا کرتے تھے، ہم نے آپ کو تسلیم کیا، آپ پر ایمان لائے۔ اللہ کے نبی یہ کہتے کہتے رو رہے تھے، صحابہ کرام بھی رو رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے انصارو، آپ یہ نہ سمجھو کہ جو لوگ میرے ساتھ ہجرت کر کے آیا میں ان کو دے دیا، نہیں، میں ان کو اس لیے دیا ہوں کہ وہ ماں باپ چھوڑ کے آئے، وہ زمین جائیداد چھوڑ کے آئے، وہ اپنے اہل عیال کو چھوڑ کے آئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا۔ میں کچھ مال دے دیا اس لیے تاکہ ان کا دل رہ جائے، ان کا دل کو سکون مل جائے، اس لیے میں دے دیا۔ لیکن تم سنو اے انصارو، تم میرے بدن کے بنیان ہو اور مہاجر میرے بدن کے کرتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جسم کے دل کے قریب کرتا ہوتا ہے یا پھر بنیان؟ کیا ہوتا ہے؟ بنیان ہوتا ہے۔ جی، گھوسدہ والے میرے نزدیک بنیان ہیں اور لوگ کرتا ہے۔ ڈاکٹر ارشد صاحب، اس بات کو آپ بعد میں ایڈیٹنگ کر کے کاٹ دیجیے گا، ورنہ پھر دوسرے لوگ غصہ ہو جائیں گے۔ بہرکیف آئیے، جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، میں بہت ہی کم ٹائم میں ٹائم کی طرف خیال رکھتے ہوئے میں چند باتیں آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں۔ میں اس میں 2 یا 3 نقطے آپ کو بتاؤں گا، ایک جہنم کے بارے میں، ایک جہنم کی خوراک، کھانا اور ان کے ہولناکیوں کے بارے میں، اور ایک جہنم میں لوگ کیوں جائیں گے اور بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ 3 نقطے پہ میں بات کروں گا، بس بہت ہی شارٹ میں سناتا ہوں، آپ بھی جلدی جلدی سنیے۔ جہنم وہ جگہ کا نام ہے، وہ کنواں کا نام ہے، وہ گھر کا نام ہے جہاں ہر قسم کے مصیبت، ہر قسم کے دکھ درد، ہر قسم کے عذاب موجود ہو۔ جو آپ جانتے ہو وہ بھی اور جو آپ نہیں جانتے وہ بھی عذاب موجود ہو، اس کا نام ہے جہنم۔ جہنم انسانوں کے لیے ہے اور جنوں کے لیے ہے۔ جہنم میں انسان اور جن یہ 2 گروہ جائے گا۔ کوئی پیڑ نہیں، درخت نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی مٹی نہیں، کوئی نہیں۔ جہنم انسان اور جن کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو کہا کہ جبریل جاؤ، جا کر کے جہنم کو دیکھ کے آؤ اور جنت کو دیکھ کے آؤ۔ جبریل امین گئے، جنت اور جہنم کو دیکھا۔ جب واپس لوٹے تو نبی نے پوچھا کہ بتاؤ جنت جہنم کو تم نے کیسے پایا؟ تو کہا اللہ کے نبی، جنت میں سارے آدمی چلے جائیں گے، جہنم میں کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اور ایک بار دیکھ کے آؤ، اور ایک بار دیکھ کے آؤ، اور ایک بار دیکھنے کے لیے گیا، پھر واپس لوٹا، پوچھا کیسے پائے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی، جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جہنم میں سارے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ جبریل امین فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، جہنم کو تو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ انسان جو دل میں چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر بیٹھتا ہے۔ خواہشات جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی کام کر بیٹھتا ہے۔ جبریل امین نے فرمایا اللہ کے نبی،
आय अल्लाह, जिब्रील ने फरमाया, आय अल्लाह मैं जहन्नम को देखा, जहन्नम को तो ख्वाहिशात से ढांप दिया गया है। कौन आदमी है जो दिल के खिलाफ काम कर सकता है? कौन आदमी जो दिल के खिलाफ काम करे? दिल जो कहेगा वही तो काम करेगा, लेकिन जहन्नम उसके लिए जो दिल जो कहे वो काम कर बैठे तो जहन्नम है। अल्लाह ने क्या प्यारे अंदाज से समझाया, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। अल्लाह ने फरमाया, व अम्मा मन खाफा, जिस आदमी के दिल में ये डर पैदा हो जाए, खौफ पैदा हो जाए कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जिसके दिल में ये डर पैदा हो जाए कि मुझे मरना है, मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, वो आदमी वनहा नफ्स अनिल हवा, और जो दिल के खिलाफ काम कर सकता है, जो दिल जो चाहे उसके खिलाफ काम कर सकता है। फजर का अजान हो रहा है, आप अजान सुन पाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आओ नमाज की तरफ, तुम्हारी नींद से बेहतर नमाज है। लेकिन आप नमाज अजान सुनने के बावजूद भी अब दिल के खिलाफ काम नहीं कर पाए, सोए रह गए, नमाज पढ़ने नहीं आए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, दुनिया वाले सुन ले, जो आदमी दिल के खिलाफ काम कर सकता है वही आदमी जन्नत में जाएगा। तो दिल के खिलाफ जो आदमी काम कर पाएगा वही आदमी जन्नत में जाएगा। तो यहां से हम और आपको सबक लेना है कि जब जब आपका दिल इस बात पे आपको उभारे कि फला काम करो, फला काम करो, और वो काम अगर कुरान हदीस के मुताबिक ना हो तो उसको छोड़ दिया जाए। और अगर आप कर बैठे तो यही जहन्नमी अमल है, यही जहन्नमी अमल है। वो जहन्नम ये है, जहन्नम की गहराई के ताल्लुक से अल्लाह के फरमाते हैं, अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, सहाबा किराम भी बैठे हुए हैं, अचानक एक आवाज सहाबा किराम सुन पाए। अल्लाह के नबी फरमाते, सहाबियों क्या तुम लोग जानते हो ये आवाज किस चीज की है? सहाबा किराम ने फरमाया कि नहीं अल्लाह के नबी हम नहीं जानते। अल्लाह के नबी फरमाते, मेरे भाइयों गौर से सुनो जहन्नम क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर को जहन्नम के मुंह में छोड़ा गया था। वो जहन्नम के मुंह से जब छोड़ा गया वो नीचे गिरता गया, वो नीचे गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। एक दिन गिरा, एक महीना गिरा, एक साल गिरा, 10 साल गिरा, गिरते 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 अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आज जाकर के जहन्नम के तह में जाकर के पहुंचा है। वो आवाज तुमने सुनाई अभी दिया है, वो आवाज आप क्या तुम जानते हो कि जहन्नम के मुंह से पत्थर को जहन्नम के नीचे पहुंचने में 70 साल लग गया। 70 साल। ये जहन्नम की गहराई है, ये जहन्नम की गहराई है मेरे भाइयों। तो ये जहन्नम किसके लिए है? आपके लिए है, आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। तो जहन्नम जो है वो आपके लिए है, हमारे लिए, जिन और इंसान के लिए है। मेरे भाइयों, हजरत जिब्रील अमीन जब देख कर के आए थे और कहा था कि ये जो जहन्नम है, जहन्नम में सारे चले जाएंगे। वो क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि आदमी दिल के खिलाफ काम नहीं कर पाएगा। मेरे भाइयों, एक बात जरा गौर करो कि रमजान में कितने लोग नमाज पढ़ा करते थे और अभी कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह को रमजानी मुसलमान नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह को रब्बानी मुसलमान चाहिए, जो 5 वक्त की नमाज सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि पूरे साल नमाज पढ़े। वो नमाज अल्लाह को चाहिए, रमजानी नहीं, रब्बानी मुसलमान चाहिए। मेरे भाइयों, दुनिया वाले नमाज छोड़ते क्यों हैं? दुनिया वाले नमाज छोड़ करके काम करते क्यों हैं? इसीलिए काम करते हैं कि मुझे पैसा मिले, मुझे रुपया मिले, मेरा परिवार सही से चले। मेरे भाइयों, तुम्हारा सोच और कुरान का सोच जरा सा तुम मिलाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदे,
जिस माल को तू कमाने के लिए तू नमाज को छोड़ता है, तो जान ले कि मैंने नमाज में ही वो माल को रखा हो। अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें माल मिलेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ लोगों सुनो, कुरान ने कहा जब इंसान अजान सुने और मुकर जाए, जब इंसान के सामने जिक्र किया जाए, वअम्मा मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि लोगों सुनो, जब तुमको अजान दिया जाए, जब तुमको कुरान की तरफ बुलाया जाए, जब तुमको नमाज की तरफ बुलाया जाए और नमाज की तरफ बुलाने के बावजूद भी तुम मुंह फेर बैठे, तुम नमाज पढ़ने नहीं आए। वमन आरद अन ज़िक्री, अब जब कोई आदमी अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर लेता है, जिक्र से मुराद कुरान है, जिक्र से मुराद नमाज है, जिक्र से मुराद इस्लाम की तमाम अमाल है, तमाम अहकाम है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो आदमी मेरे जिक्र से मुंह फेर लेगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है दो नुकसान करूंगा, एक नुकसान दुनिया में और एक नुकसान मरने के बाद। दुनिया में नुकसान किया है, जरा गौर करना, नमाज पढ़ने वालों जरा गौर करो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मईशतन ज़ंका, मैं दुनियावी जिंदगी को मैं तंगी का बना दूंगा, मैं मुश्किल का बना दूंगा। हजारों रुपया कमाओगे, हजारों रुपये इकट्ठा करोगे, फिर भी घर में बरकत नहीं होगी, घर में हमेशा झगड़ा लगा रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरे बंदे, अगर तू मेरे जिक्र को छोड़ करके अगर तू दुनिया कमाने बैठ गए, तो जान लो कि वो दुनियावी जिंदगी में तुम्हारे लिए मैं मुश्किल का बना दूंगा। दूसरा नुकसान ये होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, और जब लोगों को क़यामत के दिन उठाऊंगा, जो लोग अजान सुन करके मुंह फेर बैठा था, जो लोग कुरान सुन करके मुंह फेर लिया था, जो लोग कुरान की रोशनी के मुताबिक जिंदगी ना गुजारा, ऐसे आदमी को जब उठाऊंगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं दोनों आंखों की बिनाई मैं छीन लूंगा, अंधा करके उठाऊंगा। जरा गौर करना, तकरीर सुनना में जरा गौर भी करना। आपके घर में कितने बच्चे हैं जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते? आपके मोहल्ले में कितने आदमी हैं जो आदमी नमाज नहीं पढ़ते? मेरे भाइयों, अल्लाह ने तो कहा वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, जब मैं उठाऊंगा क़यामत के दिन तो अंधा करके उठाऊंगा। जरा गौर करना कि आपके 5 बेटे हैं तो 5 बेटे में कितने बेटे आंखों में रोशनी बिनाई लेकर उठेगा? अगर आपसे कोई कह दे कि आपकी आंख खराब हो गया, अगर आप ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आंख खराब हो जाएगा, 8 दिन के अंदर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10,000 रुपये लगेगा, गरीब आदमी है तो वो क्या करेगा? वो यही कहेगा कि चलो आंख खराब होने दो? नहीं, वो कहेगा कि कहीं से भी हो मैं रुपये इकट्ठा करता हूं और आपको का मैं ऑपरेशन कराऊंगा। मेरे भाइयों, ये आदमी जब नाबीना होकर के उठाया जाएगा, इसको ये बेनमाजी, ये हराम खाने वाले, ये सूद खाने वाले और ये इस्लाम के मुताबिक जिंदगी ना गुजरने वाले, इसको जब अंधा करके उठाया जाएगा तो चीख चीख के कहेगा या रब्बी, ऐ मेरे रब, मैं तो दुनिया में देखने वाला था, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं दुनिया में तो देखने वाला था, आज मुझे अंधा करके क्यों उठाया गया है? अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, मैंने जिस काम के लिए, मैंने जिस चीज के लिए मैं तुमको आंख दिया था, तूने उससे वो काम तूने नहीं लिया, इसलिए मैं आज छीन लिया हूं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम हम और आपके लिए बना के रखा है। नमाज आपको पढ़ना है और जहन्नम से बचना है। आप क्या जानो जहन्नम के होलनाकियों के बारे में? मेरे भाइयों, जब आदमी को जब जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, अभी जहन्नम वो उसका अंदर दिया ही नहीं, गौर कीजिएगा, अभी बाहर है। जहन्नम को देखा और देख करके उनका सोच देखिए,
हैरान हो जाएंगे। और ये जो मैं अभी बयान करूंगा, अगर इसको बगौर सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जहन्नम कितना खतरनाक जगह है। यार जहन्नम और ही खतरनाक है, जहन्नम और ही खतरनाक है। आदमी को हैरान करने के लिए जहन्नम का नाम काफी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वो कयामत का दिन होगा, जहन्नम जब सामने लाया जाएगा, वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम। गौर कीजिएगा, दुनिया में कहीं आप फंस गए, मजबूरी में हैं, दोस्त ने फोन लगाए, मेरे दोस्त मैं फंस गया हूं, मुझे बचा ले। हाँ अभी आ रहा हूं, दोस्त काम आता है, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, वला यसअलु हमीमुन हमीमा। क़यामत के दिन जब जहन्नम को सामने लाया जाएगा तो जिगरी दोस्त से बात नहीं करेगा, उससे हम कलाम नहीं होगा, हालांकि वो उसको देख पाएगा। दोस्त को देख करके दोस्त भाग जाएगा, भागेगा, इसलिए भागेगा कि शायद दुनिया में मैं इसको लिया होगा, शायद दुनिया में मैं उससे कुछ लिया हो, मैं दिया नहीं हूं, आज मुझसे मांगना शुरू कर देगा, इसलिए दोस्त भी भाग जाएगा। मेरे भाइयों, जहन्नम को तो जरा देखो मेरे भाइयों, जहन्नम को देखने के बाद लोग कहेगा, या अल्लाह इलाहुल आलमीन, मैं जहन्नम से बचना चाहता हूँ, मुझे जहन्नम से बचा ले। अल्लाह कुछ फिदिया लेके बचा दे, अल्लाह कुछ ले दे करके अल्लाह कुछ सिमटा दे। अल्लाह जहन्नम में नहीं जाना चाहता, क्या दे सकता है फिदिया में? रुपया तो है नहीं, पैसा तो वहां है नहीं, फिदिया में क्या देगा? यावद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइदिन बिबनी। अल्लाह का अज़ाब देख करके कहेगा, इलाहुल आलमीन, मेरा जो बेटा है, मेरे बेटे को मेरे बदले में जहन्नम में डाल दे और मुझे जहन्नम से बचा ले। गौर कीजिए, आप शादी करने के बाद से लेकर के बुढ़ापे तक, मरने तक आप कमाते क्यों हैं? ताकि बाल बच्चा को पाला जाए, बाल बच्चे की जिंदगी को खुशगवार बनाया जाए, बेटे का फीस भरा जाए। मेरे भाइयों, जिस बेटे के लिए आपने दुनिया में कमाया, अगर कोई आपके बेटे को थप्पड़ मारा तो आप भी जाकर थप्पड़ मारिए, क्योंकि बेटे से मोहब्बत है। मेरे भाइयों, यही बाप जब अल्लाह का अज़ाब को देख लेगा, जहन्नम को जब देख लेगा तो कहेगा, अल्लाह मैं जहन्नम से बचना चाहता हूं, तो मेरे बदले में मेरे बेटे को जहन्नम में दे दे, मुझे बचा ले। वो आदमी जहन्नम को देखेगा, सोचेगा कि मैं जहन्नम से बच जाऊं, इसलिए मैं बेटे को फिदिया में दे रहा हूं। कम है, अभी कीमत बराबर नहीं है, ये कम है, एक बेटा कम है, तो क्या कहेगा? इलाहुल आलमीन। उसके बाद कहेगा, वो कहेगा, अल्लाह मैं जहन्नम से बच जाऊं, बेटा अगर कम लग रहा है फिदिये में, अगर बेटा कम लग रहा है तो अल्लाह तू बेटे को भी जहन्नम में दे दे, अल्लाह तू मेरी बीवी को भी जहन्नम में दे दे, अल्लाह मेरे भाई को भी तू जहन्नम में दे दे। तीन आदमी का नाम लेके कहेगा, अल्लाह मेरे बेटे को, बीवी को, मेरे भाई को, तीनों के तीनों को जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे जहन्नम से बचा ले। जरा गौर तो करो, एक आदमी जहन्नम से बचने के लिए तीन अफराद को जहन्नम में डालने का बात कर रहा है। कितने खतरनाक जगह है मेरे भाइयों। फिर वो सोचेगा कि नहीं, अभी भी कम लग रहा है, मैं जहन्नम से बचूंगा, अल्लाह फिदिये में मुझे छोड़ेगा, कम लग रहा है, तो फिर क्या कहेगा? वो कहेगा, वह फसीलतिहिल्लती तुबी। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वो मुजरिम आदमी जहन्नम को देख के कहेगा, इलाहुल आलमीन फिदिया ले ले, बेटे को फिदिया ले ले, तू बीबी को, भाई को, अगर तीनों कम लग रहा है तो अल्लाह वह फसीलतिहिल्लती तुबी, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, तमाम के तमाम रिश्तेदारों को तू जहन्नम में डाल दे मेरे बदले में, और मुझे तू जहन्नम से बचा दे। गौर कीजिए, रिश्तेदार तक छोड़ा नहीं इसने, एक आदमी जहन्नम से बचने के लिए।
जहन्नम के होलनाकियों को समझिए। एक आदमी बचने के लिए बीवी, बच्चे, भाई, रिश्तेदार सबको जहन्नम में देने की बात कर रहा है। और हैरान रह जाओगे आगे क्या कहा गया, आय अल्लाह मैं जहन्नम से बच जाऊं, फिदिये में मैं जिस चीज को दे रहा हूं, जिसको मैं जहन्नम में मेरे बदले में दे रहा हूं, अगर कम लग रहा है तो अल्लाह उसके बदले में तू और ले ले। वमन फिल अर्ज़ि जमीआ तुम्मा युंजी, वो कहेगा अल्लाह अगर ये लोग भी कम लग रहा है तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, शुरू दुनिया से लेकर के लास्ट दिन तक जितने भी आदमी दुनिया में आया होगा, तमाम के तमाम आदमी को तू जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे जहन्नम से बचा ले। मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक आदमी जहन्नम से बचने के लिए दुनिया में तमाम के तमाम लोगों को जहन्नम में डालने की बात कर रहा है। जरा सोच के देखिए जहन्नम कितनी भयानक जगह है। अच्छा भाई, अगर एक आदमी के बदले में दुनिया के तमाम लोगों को दे दिया जाए जहन्नम में, फिर अल्लाह छोड़ देगा क्या? अल्लाह छोड़ेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि फिदिया वहां नहीं चलता, वहां फिदिया नहीं चलता। तो मेरे भाइयों, ये जहन्नम की होलना किया है, इससे आपको समझना पड़ेगा कि जहन्नम क्या चीज है। मेरे भाइयों, मैं आपको समझाऊं कि जहन्नम जो है, ये जहन्नम में वही लोग जाएगा जिनके पास कुछ आमाल देखने को मिलेगा। वो क्या है वो मैं बाद में बताता हूं, पहले ये सुनिए। अभी तो वो आदमी बाहर था, जहन्नम से बचने के लिए पूरे दुनिया वालों को जहन्नम में डालने का बात कर रहा था। अब जब जहन्नम में फेंक दिया जाएगा तो जरा कंडीशन देखिए। अगर दुनिया में कोई आग में किसी को फेंक दिया जाए तो चमड़ा जल जाता है, चमड़ा जलने के बाद लेकिन गोश्त नहीं जलता, बल्कि वो तेल बन करके पिघल जाता है। मेरे भाइयों, लेकिन वो हड्डी तक पहुंचने से पहले उस आदमी का इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है। दुनिया में दुनिया की आग की बातें, लेकिन जब जहन्नम में जब डाला जाएगा तो जहन्नम की आग के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। अगर जहन्नम में आग अगर थोड़ा सा टच कर ले तो दिल जल करके राख हो जाएगा। वो जहन्नम की आग है। जब आदमी को जहन्नम में फेंका जाएगा तो उसको जलते जलते चमड़ा जल जाएगा, गोश्त जल जाएगा। जब हड्डी तक पहुंच जाएगा तो सोचेगा अब मैं मर जाऊंगा, अब मुझे बचा लिया जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मौत को मेंढक के शक्ल में लाएगा और कहेगा ऐ जन्नतियों तुम भी देख लो, ऐ जहन्नमियों तुम भी देख लो, ये मौत है, देखो मैं मौत को आज मैं ज़बा कर रहा हूं। मौत को ज़बा कर दिया जाएगा और कह दिया जाएगा ऐ जन्नतियों आज से तुम जन्नत में हमेशा के लिए रहोगे, और जहन्नमियों आज से तुम हमेशा जहन्नम में तुम रहोगे। ये बात सुनते ही जहन्नमी का और अज़ाब बढ़ जाएगा और परेशानी बढ़ जाएगी। वो आदमी वो लोग कहेगा अल्लाह अब तो मैं मर जाऊंगा। जब पूरा जल के राख हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि जब एक मर्तबा जल जाएगा तो मैं फिर उसको नया चमड़ा दे दूंगा, फिर उसको मैं बना दूंगा और फिर उसको जलाता रहेगा। ऐसे ही उसको सजा मिलता रहेगा। मेरे भाइयों, जहन्नम में रहने से भूख लगती है, प्यास लगती है। जब भूख लगेगा तो क्या खाएगा वो, जब प्यास लगेगा तो क्या पिएगा। मेरे भाइयों, पास में जन्नतियों को देख पा रहा है। जन्नत में बाप है, जन्नत में छोटा भाई है, जन्नत में बीवी है। शौहर अगर जहन्नम में, बीवी अगर जन्नत में है तो शौहर कहेगा वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नह,
जहन्नमी जन्नतियों को पुकार कर कहेगा अन अफीजू अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। ऐ जन्नतियों, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे बाप, मैं तुम्हें पहचान रहा हूं, तुम मेरे बाप हो, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे शौहर हो, मैं तुमको तो अल्लाह ने बहुत सारे नेमतों से नवाजा है, मैं जहन्नम में हूं, कुछ खाने को नहीं मिलता, कम से कम अन अफीजू अलैना मिनल मा, थोड़ा सा पानी दे दो, जो पानी अल्लाह ने तुमको दिया है उन पानियों में से थोड़ा सा पानी मुझको दे दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों को जो रिज़्क दिया है उन रिज़्कों में से थोड़ा सा हमें दे दो, बहुत भूख लगी है, जहन्नम में खाना नहीं मिल रहा है। नहीं तो वो लोग कहेगा कि सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों का खाना जहन्नमियों के लिए हराम करार दिया है, काफिरों के लिए हराम करार दिया है। ओ बापों, ओ शौहरों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो बीवी आज जन्नत में है और आप जहन्नम में है, अगर आप उस मांगो तो वो नहीं देगी, लेकिन वो उस टाइम नहीं देगी तो आज बीवी के लिए जो हराम कमाना क्यों? आज बीवी के लिए सूद खाना फिर कैसा है? आज बीवी को खुश रखने के लिए फिर लोगों का माल हड़प लेना फिर कैसा अमल है? ऐ लोगों, वहां तो कोई किसी का काम ना आएगा। जब खाना ना मिलेगा तो अल्लाह से कहेगा अल्लाह हमें खाना दिया जाए, बहुत भूख लगा, अल्लाह खाना दिया जाए। मेरे भाइयों, खाना मांगते 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 1000 साल यूं ही बीत जाएगा। 1000 साल के बाद अल्लाह कहेगा जाओ उनको खाना दे के आओ। क्या खाना दिया जाएगा? ज़क़ूम का फल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ज़क़ूम का फल दिया जाएगा। ये कांटेदार फल है, जब वो खाएगा भूख की शिद्दत इतनी है कि कांटेदार दरख्त होने के बावजूद भी उसको खा लेगा, और जब खाएगा तो उसके गले में आकर के अटक जाएगा और वो पानी मांगेगा। मेरे भाइयों, अगर दुनिया में रोटी खाते खाते, भात खाते खाते अगर हलक में अटक जाए तो जल्दी से पानी देना पड़ता है। अगर पानी ना मिले तो इंसान मर भी जा सकता है। अगर बीवी थोड़ा सा पानी लाने में थोड़ी देर कर दी तो बीवी की पिटाई हो जाती है। वहां किसको पिटोगे? 1000 बरस के बाद पानी लाया जाएगा। पानी कैसा लाएगा? जरा गौर करना। आप मेरी बयान को इस नियत से सुने कि अभी आप जहन्नम में, मैं आपके लिए ही बयान कर रहा हूं, मैं आपकी हालत को बयान कर रहा हूं, इस नियत से सुनिए। मेरे भाइयों, पानी जब 1000 बरस के बाद जब लाया जाएगा तो वो कहेगा, वो पानी कौन सा पानी होगा? जरा गौर करना। जो पीप होता है जहन्नमियों की पीप और खून, जिसको हम बंगला में पूज कहते हैं, वो बदबूदार पानी उसको लाया जाएगा। मेरे भाइयों, जब वो बदबूदार पानी सामने लाया जाएगा और जब उसको पिएगा, कैसे पिएगा? जरा गौर करना। मेरे भाइयों, ये पीप है, ये खून है, इसमें बदबू आ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये अगर दुनिया में एक बाल्टी फेंक दिया जाए तो पूरा दुनिया जल करके राख हो जाए, पूरा दुनिया बदबूदार हो जाए, सारा इंसान मर जाए, सारे जानवर मर जाए, इतनी बदबूदार वो पानी है। मेरे भाइयों, वो पानी कैसे पिएगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो पानी वैसे पिएगा जैसे ऊंट पानी पीता है। ऊंट जैसे पानी पीता है। मेरे भाइयों, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि ऊंट कैसे पानी पीता है। एक बार पानी पी ले तो 1 महीना ऊंट पानी नहीं पीता। ऊंट अगर एक बार पानी पी ले तो 1 महीना का पानी वो एक बार पीता है। मेरे भाइयों, तो जैसे ऊंट पानी पीता है उस तरीके से वो आदमी वो पीप को, वो पूंछ को, वो लहू को खोलता हुआ पीप, बदबूदार पीप को पिएगा। पी के होगा क्या? अल्लाह फरमाता है जब मैं जो खाना दूंगा
जो पीने के लिए मैं जो पानी दूंगा उससे ना भूख मिटेगी ना उसका बदन मोटा होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरे भाइयों, जब उसको पिएगा तो पेट में आते ही बदहजमी हो जाएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब पेट तक वो पानी पहुंचेगा, वो फल पहुंचेगा, तो पेट के अंदर में जितनी भी अंतड़ियां, जितनी भी कुछ हैं, वो सारे काट काट करके सारे पकाने के रास्ते से बाहर हो जाएगा। और वो कहेगा, वो गिर जाएगा, कहेगा अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, अब तो मौत आ जाएगी। लेकिन मौत वहां कहां आएगी? मौत को तो ज़बा कर दिया गया है। ये खाना है जहन्नमियों का, ये खाना है जहन्नमियों का। ऐ मेरे बापू, बेटे के लिए हराम मत खाना, बीवी के लिए हराम मत खाना। मेरे मां बहने, आप भी सुने, शौहर अगर हराम कमाता हो तो उसे समझाइए कि हराम मत कमाओ। क्यों? क्योंकि उस दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा। इसलिए जब वहां काम नहीं आता है तो यहां आप आखिरत को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? मेरे भाइयों, ये जो जहन्नम का खाना हुआ, हम अल्लाह से दुआ करते कि इलाहुल आलमीन हम तमाम के तमाम आदमी को जहन्नम की इस खाने से और जहन्नम से हम सबको बचाए। बोले अल्लाह आमीन। मेरे भाइयों, मैं आपको और बताऊं कि ये जो जहन्नम है, ये जहन्नम में इंसान जाएगा क्यों? क्यों आएगा जहन्नम में? बहुत ही पॉइंट की बात बताता हूं मैं। पहली बात तो ये कि आपके दिल में, जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, वो आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा। एक वाक्य सुनाता हूं, देखिए आपके अंदर फिक्र और जहन्नम का डर कैसा होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब खलीफा बने हैं। बैतुल माल से एक चिराग बनाया गया और बैतुल माल के रुपया से वो तेल खरीदा गया। तेल डाल करके वो चिराग जला करके बैतुल माल का काम क्या करता है? वो लिखता है, वो पढ़ता है। वो बैतुल माल का काम क्या करता है? मेरे भाइयों, एक दिन रात में एक आदमी दूर दराज से आया और कहा, या अबू बकर, अबू बकर अंदर हो या नहीं? अबू बकर ने कहा, हो, तुम कौन हो? तो उस आदमी ने कहा, मैं दूर दराज से आया हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। गौर करके सुनना, हजरत अबू बकर फरमाते हैं, पहले तुम ये बताओ, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? क्या तुम इस्लाम के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हो? क्या तुम बैतुल माल के बारे में कुछ बातें पूछने के लिए आए हो? वो आदमी ने कहा कि नहीं, ना मैं इस्लाम के बारे में पूछने आया, ना मैं बैतुल माल के बारे में कुछ पूछने आया। मैं तो यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि मिलते हुए जाऊं, इसलिए मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि ठीक है, अंदर आ जाओ। वो आदमी जब अंदर की तरफ देखा तो देखा कि एक चिराग जल रहा है और चिराग के सामने अबू बकर बैठे हुए हैं। और जब वो आदमी अंदर को बैठ गया, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने बैठ गया तो अबू बकर सिद्दीक ने उस चिराग को बुझा दिया। देखिए जरा, चिराग को बुझा दिया। अच्छा भाई, घोषदा में अगर कोई मुझे दावत दे रात में, आइए मौलाना, मैं आपके घर में गया और सारे पंखा और बल्ब बंद कर दिए, तो ये इज्जत है कि इज्जत की तौहीन है? वो आदमी कहने लगा, ऐ अबू बकर, मैंने आपके बारे में जैसा सोचा था आपको वैसा नहीं पाया, मैं जैसे सुना था वैसे नहीं पाया। और ये जो नाम अबू बकर सिद्दीक है, ये वाकया उससे भी जिक्र है और ये वाकया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से भी जिक्र है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज
کہ پاس جب وہ آدمی آیا اگر چراغ کو بجھا دیا گیا تو کہا ایسا کیوں کیے, کیوں چراغ بجھا دیے؟ تو عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ سنو, یہ بیت المال کا چراغ ہے, یہ بیت المال کا تیل ہے, میں بیت المال کے تیل سے میں چراغ جلا رہا ہوں. سنو, میں جب بھی کام کرتا ہوں, جب بھی میں بیت المال کا کام کرتا ہوں تو چراغ جلایا کرتا ہوں, اور جب بھی میں دنیا بھی کوئی بات کرتا ہوں تو چراغ بجھا دیا کرتا ہوں. پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا اے میرے بھائی ذرا غور کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے سوال کر بیٹھے اے عمر بن عبدالعزیز بتاؤ تم نے بیت المال کی تیل سے جو چراغ جل رہا تھا تو آپسی بات میں تو کیوں خرچ کیے بتاؤ؟ اگر اللہ مجھ سے سوال کر بیٹھے کہ بیت المال تم نے خرچ کیوں کیا, اپنے ذاتی کام کے لیے تم نے خرچ کیوں کیا, اگر مجھ سے سوال کر بیٹھے تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا, میں جہنم میں چلا جاؤں گا. میں جہنم سے بچنے کے لیے میں نے چراغ کو بجھا دیا. میرے بھائیوں, کتنے لوگ ہیں جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے, عہدہ دی جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے امبانی بنا دیا گیا ہے. اب یہ امت کے مال کو اپنے باپ کے مال سمجھ کر کے خرچ کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد, اس حدیث کو غور سے سنا جائے, ما من عبد یستریہ اللہ رعیتا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو کوئی ذمہ داری سونپتا ہے, کوئی عہدہ سونپتا ہے, یموت یوم یموت, اور وہ اس حال میں مر جاتا ہے کہ وہ غاص لرعیتہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس حال میں وہ مر جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کے ساتھ اس نے فراڈ کیا ہو, اس کی ذمہ داری کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہو, اس کی ذمہ داری کے ساتھ وہ کام کو نبھایا نہ ہو, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ, ایسے لوگوں کے لیے جنت پھر حرام ہے. جنت حرام ہے تو رہو گے کہاں؟ جہنم میں. میرے بھائیوں, تو اگر آپ کے پاس کوئی ذمہ داری اگر ہے تو ذمہ داری کو نبھائیے. ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں کوئی بھی آدمی ذمہ داری کے باہر نہیں ہے, ہر آدمی ذمہ دار ہے. کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے تو کوئی دینی مدارس کا ذمہ دار ہے, کوئی گھر کا ذمہ دار ہے, کوئی اسکول کا ذمہ دار ہے, کوئی بیوی کا ذمہ دار ہے, کوئی بچے کا ذمہ دار سب ہے, سب ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ قیامت کے دن تم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی ان ذمہ داریوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے یہ ذمہ داری نبھایا یا نہیں, پوچھا جائے گا. اگر آج رمضان میں اگر آدمی کھچاکھچ مسجد میں بھر جاتے تھے اور آج مسجد خالی ہے تو اس کا جواب دہی باپ کو دینا ہوگا کہ باپ نے صحیح طریقے سے ذمہ داری نبھایا ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ جو ذمہ داری شادی کر لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے. شادی کر کے ذمہ داری کو صحیح سے نبھانا ہی اصل کامیابی ہے اور اصل شوہر ہے. شوہر اس کو نہیں کہا جاتا, باپ اس کو نہیں کہا جاتا جو بچہ پیدا کر دے, باپ تو اس کو کہا جاتا ہے جو بیٹے کو نیک راہ کے راہی بنائے, جو اپنے بچے کو دین سکھائے, اسلام سکھائے, اپنا ذمہ داری خود نبھائے, اس کو باپ کہا جاتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو نماز کے لیے بولیے. میں کبھی اسی مسجد میں بیان کیا تھا, آج پھر بولے دیتا ہوں. سعودیہ میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک باپ کا 2 بیٹا, ایک کا عمر 7 سال, ایک کا عمر 10 سال, دونوں بیٹا اسکول میں پڑھتا ہے. گھر میں ڈرائیور ہیں, گاڑی ہے, ڈرائیور اپنے گاڑی سے دونوں بچے کو اسکول ہر روز چھوڑ کے آتا ہے. باپ ایک دن بولا کہ سنو ڈرائیور, آج آپ کی چھٹی ہے, آج میں خود ڈرائیونگ کروں گا اور اپنے بچے کو میں خود اسکول میں چھوڑ کے آؤں گا.
तो दोनों बेटे बोल पड़े कि नहीं, आप अगर गाड़ी चलाएंगे तो हम लोग बैठेंगे ही नहीं। बाप हैरान हो गया, अजीब बात है, अरे इससे पहले भी तो मैं क्या कहता गाड़ी में बिठा करके तुम लोग मैं ले गया, स्कूल छोड़ के आया, आप क्यों नहीं जाओगे? बड़ा बेटा बोला, बाबा मेरा बुझान अगर ना सुने तो बेहतर, अगर आप आज गाड़ी चलाएंगे, ड्राइविंग करेंगे तो मैं गाड़ी में बैठूंगा नहीं। बोला क्या मेरे बेटे बोलो, ऐसी कौन सी बात है जिस बात के लिए अगर गाड़ी चलाऊं तो तुम नहीं बैठोगे? तो छोटे बेटे कहने लगे, ऐ मेरा बूजी तो सुनिए, सुबह की नमाज में घर के ड्राइवर भी फजर की नमाज अदा किया है, माँ भी, हमारे घर में तमाम के तमाम अफराद नमाज पढ़े हैं सुबह की फजर की, लेकिन ऐ मेरा बूजी आपने नमाज नहीं पढ़ा है। बोला बेटा एक वक्त की तो नमाज नहीं पढ़ा हो तो नमाज के साथ इसकी क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है, तुम गाड़ी में क्यों नहीं बैठोगे? तो बेटे कहने लगा, ऐ मेरा बूजी सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो आदमी नमाज छोड़ दे जानबूझ करके, एक वक्त भी छोड़ दे, एक वक्त भी छोड़ दे, वो मुआज का हदीस है, कहते हैं आई मुआज ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरियत मिनहु जिम्मतुल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आई मुआज कभी भी जानबूझ करके फर्ज नमाज को ना छोड़ना, अगर तुम जानबूझ करके फर्ज नमाज को छोड़ दोगे तो जान लो कि तुम अल्लाह की जिम्मा से बाहर हो जाओगे, तो अल्लाह की जिम्मा से निकल जाओगे। ऐ मेरा अब्बूजी आज अपने फजर के नमाज छोड़ करके अल्लाह की जिम्मा से निकल चुके हैं, आप जब गाड़ी चलाएंगे तो आज तो आप अल्लाह की जिम्मे में नहीं हो सकता है तुम एक्सीडेंट कर दो, हो सकता है कि तुम गाड़ी को खाई में गिरा दो, नहीं आज तो नहीं जाऊंगा, जिस दिन तुम अल्लाह की निगरानी में रहोगे, अल्लाह की जिम्मेदारी में रहोगे, उस दिन मैं जरूर बैठ जाऊंगा। ऐसा बेटा है हमारे, कहां मिलेगा ऐसा बेटा, कहां मिलेगा? मेरे भाइयों, समाज को बिगड़ने से बाप और मां रोक सकते हैं। एक प्यारी सी बात बता दो, वक्त तो करीब करीब है, लेकिन प्यारी सी बात सुन लीजिए जरा। वाकया बयान हरगिज नहीं करूंगा, समाज को ठीक करना, मुआशरे को ठीक करने के लिए बस 5 मिनट में बात। हजरत मरियम का वाक्य सब जानते हैं, मैं वाक्य बयान नहीं करूंगा। मुआशरे की बिगाड़ में बाप की क्या जिम्मेदारी है ये समझाने के लिए। मेरे भाइयों, मरियम की जिम्मेदारी जकरिया अलैहिस्सलाम को दिया गया था, मस्जिद के रूम में रखा गया था। हजरत जकरिया एक दिन आके देखते हैं तो रूम के अंदर बेमौसम फल पड़ा हुआ है, सेब का मौसम नहीं तो सेब है, अंगूर का मौसम नहीं फिर भी अंगूर है, केले का मौसम नहीं फिर भी केला है। तो पूछने लगा, आए मरियम बताओ तुम्हारे रूम में, तुम्हारे हुजरे में ये तमाम के तमाम बेमौसम फल कहां से आया? तो मरियम का हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये सारे फल हैं। मेरे भाइयों, इस वाकया से कभी तो सबक हासिल नहीं किए, कम से कम आज सबक हासिल करके जाओ। मरियम के रूम में बेमौसम फल देख करके चुप नहीं रहे, बल्कि सवाल कर बैठे। जब आप अपनी बेटी के पास मोबाइल देखो तो पूछो, ऐ मेरी बेटी मैं तो मोबाइल खरीद कर नहीं दिया था, तुझे मोबाइल खरीद करके किसने दिया? कभी पूछो तो सही, ऐ मेरी बेटी तुम्हारे मोबाइल पे तो रिचार्ज खत्म हो गया था, रिचार्ज तो मैं करवा के नहीं दिया, फिर रिचार्ज किसने करा के दिया बता? कभी सवाल तो कीजिए। ऐ मेरे बापों, अल्लाह ने तुम्हें जिम्मेदार बनाया औलाद के, तो कभी पूछ के तो देखो। यही वाकया यही सबक सिखाता है कि अपने बाल बच्चे की हर अफआल पे तुम नजर रखो। कहीं पूछो तो जरा बेटी से, बेटी के पास कितना मोबाइल है बाप जानता नहीं, वो बाप ही नहीं हो, वो बाप ही नहीं है। हाँ मेरे भाइयों, आगे देखिए और एक बात, जब
बच्चा हजरत ईसा पैदा हो गए, मरियम जब गोद में लिए हैं, लोग आ गए तो लोगों ने तीन अफराद का नाम लेके कहा। क्या कहा? आए मरियम, आए हारून की बहन। हजरत मरियम का कोई भाई था जिसका नाम हारून था। आए हारून की बहन, तेरा भाई तो अच्छा आदमी था, तेरा भाई तो बुरा नहीं था, तेरे बाप भी तो बुरा आदमी नहीं था, तेरी माँ भी तो जानिया नहीं थी, बच्चा नहीं थी, तेरा बाप भी सच्चा आदमी, नेककार आदमी, तेरे भाई भी, तेरी माँ भी। बताओ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों हो गया? ये पेट तूने कहां से कराया? इस बच्चे का बाप कौन है? बताओ मेरे भाइयों, गांव वालों का ये सवाल करना, क्या है मरियम, तेरा भाई भी ठीक था, तेरा बाप भी ठीक था, तेरी माँ भी ठीक है, फिर भी तूने ये गलती क्यों की? मतलब ये है, उलमाए कराम लिखते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये के घर में बाप भाई माँ अगर बिगड़ जाए तो घर का माहौल ही बिगड़ जाता है, घर का माहौल ही बर्बाद हो जाता है। बाप भाई माँ अगर ठीक रहे, दीनदार रहे, नेककार रहे, तो घर में लड़कियां बिगड़ने का चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो आप अपना जिम्मेदारी सही से निभाइए। बेटे नमाज नहीं पढ़ते तो उसको नमाज में लाए। क्यों? इसलिए जन्नती लोग कहेंगे मासलकुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों, किसने तुम्हें जहन्नम में लेके आ गया? तो वो लोग कहेगा क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, ऐ मेरे बापो, वो आदमी जो जहन्नम में है, आज जो जवाब देते हैं वो चोरी का भी गुनाह किया होगा लेकिन चोरी के बारे में नहीं बताया, उसने जिना भी किया होगा लेकिन जिना के बारे में नहीं बताया, उसने और बहुत सारे गुनाह किए होंगे लेकिन उन गुनाहों के बारे में नहीं बताया, बल्कि बताया तो ये बताया, ऐ जन्नतियों सुनो, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, आज जो हम जहन्नम में हैं तो जहन्नम में इसलिए आए कि हम बेनमाजी थे, हम बेनमाजी थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए आज हम जहन्नम में। ऐ मेरे बापो, अगर आप चाहते हैं कि जहन्नम से आप बच जाओ तो आपको चाहिए कि नमाज कंट्रोल रखो, नमाज कंट्रोल रखो। नमाज को कंट्रोल रखने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। ये बता के ही मैं अपना बयान खत्म करूंगा। वो ये है, अच्छा আপনারা বাংলা বুঝতে পারছেন না? বাংলা কে কে বাংলা বুঝতে পারছেন? যারা মাছ মারে, মাছ জাল যদি নেট, যে জালে মাছ ধরে যদি ফোঁটা থাকে, কিছু কিছু ফোঁটা আছে, ও যে মাছ ধরে তো 1 কিলো না পেলেও তো 1 পোয়া পাবে, পাবে না? 1 পোয়া তো পাবে। কিন্তু মাছ ধরে যদি যে হাঁড়িতে রাখবে ওই হাঁড়ি সম্পূর্ণ যদি তলাটা ফোঁটা থাকে, একটা মাছ থাকবে? अगर मछली पकड़ करके हंडी में रखा जाए और वो हंडी नीचे से सुराख हो तो बताओ एक भी मछली रहेगी? नहीं रहेगी, सारे भाग जाएगी। मेरे भाइयों, मछली वाले को चाहिए कि मछली पकड़ने से पहले जाला ठीक करे, मछली वाला को चाहिए कि मछली पकड़ने से पहले वो हंडी को सही सलामत रख के ठीक करे, छेद को बंद करे या फिर दूसरा खरीद करके लाए। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने से पहले भी आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम किया है, वो काम है जिस काम को करने के लिए अल्लाह ने तमाम नबियों को कहा था, आपकी क्या मजाल है, आपकी हैसियत क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मैं किस खेत की मौली हूं? अल्लाह तबारक व तआला नबियों का कहा था, या अय्युहर रसूल, ऐ नबियों, मतलब ऐ ईसा, मूसा, ऐ हारून, ऐ इदरीस, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, तमाम के तमाम नबियों को बुला के कहा, या अय्युहर रसूल, रसूल जमा का सिगा है, या अय्युहर रसूल, ऐ रसूलो सुनो,
कुलू मिनत तय्यिबात, तुम हलाल चीज खाया करो, हराम से बचो, हलाल चीज खाया करो। वामिलू सालिहा, उसके बाद तुम नेक अमल करो, उसके बाद तुम नमाज पढ़ो, उसके बाद तुम रोजा रखो, उसके बाद तुम ज़कात दो, उसके बाद तुम नमाज पढ़ो। तमाम के तमाम नेक अमल तुम तब करो जब तुम हलाल खाना शुरू कर दो। तो आपको नमाज पढ़ने से पहले हलाल खाना होगा, हराम छोड़ना होगा। फिर ये मसला मत लीजिए कि मौलाना जमील ने बोला कि पहले हराम हलाल खाओ उसके बाद नमाज पढ़ो। अभी तो हराम खा रहा हूं, जब हलाल खाऊंगा तब नमाज पढ़ूंगा। नहीं, उल्टा लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। आपको सही तरीके से लेना है कि अगर आप हराम खाते हैं, आप मैंने मना कर दिया नमाज पढ़िए, हराम खाओ फिर भी नमाज पढ़ो, सूद खाओ फिर भी नमाज पढ़ो। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, लेकिन उस हराम को छोड़ो। नमाज कबूल होने के लिए शर्त है कि हलाल खाया जाए, ज़बान को पाक किया जाए। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए, जब भी मैं दुआ करूं तो अल्लाह दुआ कबूल करे। तो नबी ने कहा था, ऐ मेरे सहाबी, तू अपने लुकमे को हलाल रख, जो लुकमा तू मुंह में देगा वो तो हलाल रिज़्क खाया कर, हलाल ग़िज़ा खाया कर। जब तुम हलाल खाओगे तो जब भी दुआ करोगे तो अल्लाह कबूल करेगा। आज फिलिस्तीन के हालात देख लीजिए, गजा के हालात देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे। एक वीडियो तो ऐसा आया था कि एक बाप अपने बच्ची का मुर्दा लाश लेकर के घूम रहा था, लेकिन लाश का मुंडी नहीं था, सर नहीं था। वो बाप रोता फिरता था। कई बच्चे को देखा गया कि वो बच्चे घास फूस खाते नजर आए। ऐ लोगों, दुआ तो सब करते हैं, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? हराम तो छोड़ो, हराम तो छोड़ो। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जहन्नम से बचने का एक वाहिद रास्ता यह है कि नमाज ही बना जाए। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आज मैं जो बयान कर रहा हूं, जितना दिक्कत मुझे हो रही है, कल मैं 3 बयान करने दिक्कत नहीं हुई। वो इसलिए कि मेरा आवाज वैसे ही बैठा हुआ था। ये अरशद साहब का बदौलत है कि मैं फ्री में मैं दवा लिया हूं। मौलवी लोग रुपए नहीं देते ना, हाँ मैं फ्री में दवा ले लिया हूं मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक हूं। लेकिन मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करता हूं अल्लाह के लिए। मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, अपने बेटे को नमाज के लिए आओ। जहन्नम से बचने का रास्ता क्या है? तो नमाज है बस। और दो एक बात, एक और रास्ता क्या? दुआ। दुआ दुआ एक दुआ सिखाता हूं। दुआ क्या है? सब जानते हैं उस दुआ को, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा दे। ये दुआ याद है कि नहीं है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गौर कीजिएगा, नबी फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी 3 मरतबा ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, तो जहन्नम उस शख्स के लिए दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, अल्लाह इस आदमी को जहन्नम से बचा दे। दुआ कौन किया? तो जहन्नम दुआ किया। इस दुआ को सुबह शाम पढ़ते रहिए, 3-3 मरतबा पढ़ते रहिए, 7 मरतबा पढ़ते, जितना दिल चाहे पढ़ते रहिए। तो जहन्नम से बचने का रास्ता क्या? दुआ भी है। और एक तरीका क्या है कि मान लीजिए कि आपका बाप इंतकाल कर गया। किस किसका बाप इंतकाल कर चुके हैं? हाथ उठाइएगा। किसका बाप इंतकाल कर चुके हैं? बाप क्या चीज है, उनसे पूछा जाए तो पता लगेगा बाप क्या चीज है ना। कब्र में है, मां कब्र में है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी गुनाह के लिए अल्लाह बहुत गुस्सा है और उसका अजाब दे रहा है, लेकिन सदक़तु सिर्री तुत्फिउ गज़ब रब्बी, अगर कोई चुपके से दान कर दे, नाम बता के नहीं, नाम लिखवा के नहीं, चुपके से दान कर दे। किस लिए मैंने दान किया? मेरा दिल जानता है मैं किस लिए दान किया। जो चुपके से दान करता है, अगर कोई कब्र में है, चुपके से दान कर दे तो कब्र का अजाब बंद हो जाएगा, जहन्नम से बच जाएगा। तो ये चुपके से दान करने का ये फायदा है। मैं बयान यहीं से खत्म करता हूं।